by public notification. Declare that the article shall cease to be operative or shall be only operative in such exceptions and modifications from such date as he may specify. Provided. All right, provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred to in clause 2 shall be necessary before the President issues such a... The Constituent Assembly has to agree. Constituent Assembly. There is no Constituent Assembly. But you should No. then hold elections, let the No, Constituent no, huh? See, it was for Constituent Assembly to recommend or to say. Recommend. Assembly, not the Parliament. Not a parliament. Constituent, it was, see, आपने tacitly, impliedly ये सारा अधिकार मान लिया और पोजीशन मान ली. अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी, देखिए आप 370 में जो पार्लियामेंट ने बनाया अधिकार दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जम्मू कश्मीर को. Constituent Assembly हो गई Parliament. So if the Parliament agrees, No, it cannot. Why? You don't have power. First is that why should you... There is no need for Indian Parliament also. No, no, President ka notification. See. That's what it No, says. see. It can be done 5 minutes. First, If Narendra Modi gets some nerve, he'll do it. he will is not. Narendra Modi planning to do it? I don't think so yet. Why not? But we will put the pressure, don't worry. First I'll get the Ram Mandir, then I'll go after 370. So let me hear why. Let me say something. One second. एक See. बारी मुझे एक पूछ लीजिए. Why is he not keen to make this a priority? आपके मैनिफेस्टो में है और काफी मैनिफेस्टोज में है. You are asking me, I am an individual, I've got only 24 hours, I have to use my energy by focusing. What did the Dronacharya say to Arjuna? What do you see? He says, I see the iris of the eye of the bird only, nothing else. That way, today I only see Ram Mandir. Once it is done, 370 will be the next. देखिए मोदी जी के जो बयानात आ रहे हैं वो बड़े एनकरेजिंग है. अब देखिए वो एक मैसिव मैंडेट के पास उन्हें मौका मिला इतिहास में अपने लिए एक जगह बनाने का, ताकि वो सैकड़ों साल के लिए जाने जाएं एक अमन के एक पैगंबर, अमन के एक दाई. उनके लिए एक अवसर है कि वो इस वक्त जनूबी एशिया को, सारी साउथ एशिया को नजात दिलाएं इस एक पेस्टिंग जो एक मसला है. तो और उसी के हमें इंतजार मिल रहा है. देखिए उन्होंने कल अपोजिशन के बारे में कितना अच्छा कहा हम आपके हर लफ्ज का, हम आपके हर वर्ड का रिस्पेक्ट करेंगे. उन्होंने जो रीजनल एस्पिरेशंस की बात की, एक उम्मीद बन जाती है. अब देखिए समाज में ये कुछ नहीं है जो नई बात हो रही है. आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस की संस्कृति हमारे पर मत थोपिए. हम बीजेपी के लोग मैनिफेस्टो में आधारित हैं. हम कोई हमारे कोई प्रधानमंत्री अकेला कुछ बोल नहीं सकता. जो मैनिफेस्टो में है उसी को करना होगा, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते. कई चीजें मैनिफेस्टो में 70 साल से, देखिए कई चीजें आपके मैनिफेस्टो में 70 साल से. उसका मतलब ये नहीं कि वो आप अमलाएंगे और आप नहीं अमलाए हैं. बात यह है कि 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के दरमियान एक कड़ी है, एक जंजीर है. तो इसको खत्म आप लोगों को ये दे रहे हैं कि तासुर दे रहे हैं कि जिस सत्र खत्म होगा तो कोई बड़ा ही मामला हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है टू पुश इन लॉज टेम्पररी दैट आर इन. नो, इट वाज इन द पर्टिकुलर कंटेक्स्ट. See, because you didn't go for it. Context is a ban. It ought to have been temporary because matter was before UNSC. Constitution में लिखा है. And you had made a promise that you no would go need for for referendum. Parliament vote. President notification. No Constituent Assembly of Jammu Kashmir. देखिए मुल्क के लोगों ने एतमाद दिया है मोदी जी को, इतना मैसिव मैंडेट. प्लीज हम चाहते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाए इनटू पीस इनिशिएटिव एंड एग्रेसिव पीस इनिशिएटिव. और उसका इशारा मिल रहा है. Modi is bound to remove Article 370. There is no way escape. अच्छा, what are the advantages of removing according to you? अब क्या होगा? No, what is all this? 3 सीट मिलने के सिवाय और नहीं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा. हम लोग जाकर वहाँ बस सकते हैं और जो कश्मीरी पंडितों को भगा दिया उनको वापस अब श्रीनगर भेजनी पड़ेंगी. मैं तो वैसे भी मेरा हक बनता है क्योंकि मेरा पूर्वज ऋषि का शपा है. तो मुझे पहला आप स्टेट सब्जेक्ट वहाँ की निकाले, वो देखें खोजें कहाँ से है तो कोई बात नहीं. लेकिन स्टेट सब्जेक्ट होना तो कानून है ना, महाराजा का बना हुआ कानून है जिसको मैं कानून के अनुसार ही कर रहा हूँ. मैं तो कानून के हिसाब से ही कर रहा हूँ. अच्छा, हम थोड़ा सा ऑडियंस से भी सवाल लेंगे बिकॉज यहाँ तो बहस चलती रहेगी. एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस? हाँ बिल्कुल. अभी ऋषभ जी हैं. ऋषभ जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं न्यूज़ एक्स के. पहला सवाल इन्हीं से मैं लेना चाहूंगा. कुछ पूछना चाहते हैं ऋषभ? I wanted to, Dr. Swami, ask a very particular question. Now, we know the constitution is mandating 24 seats which are lying vacant in Jammu and Kashmir, sir, for residents of the POK. We have a refugee population living here in India. Why don't we fill the seats, sir? Because unless we change the makeup of the assembly, nothing will change. Good suggestion. But first let me remove 370, then we will worry about
that. Dr. Masood, One thing at a time. Justice Masoodi, same question. Would you support filling of those 24 seats, sir, in the Jammu and Kashmir Assembly? Should we get POK refugees, elect them and fill them? See, we respect Constitution of Jammu and Kashmir, and whatever is provided by Constitution of Jammu and Kashmir, that is what we'll follow. That's neither a yes or no, sir. Because we see the country gave us people of country gave us a right to have our own constitution. See, this constitution did not come from nowhere. See, Constituent Assembly finds mention in 370 itself. See, it is not that we have just from nowhere just gone for a constitution. There was a Constituent Assembly. And see again, sir, in 1949, Maharaja did not adopt entire constitution the way Raj Pramukh Sahab other states did it. It was Maharaja. There were 3 exceptions. Representing whole of Jammu and But Kashmir. he signed Jammu and Kashmir the instrument of accession. 1949. He did not adopt entire constitution. He said only what is applicable. And it was Maharaja, not, you want to make this whole issue of parochial or just Muslim centric. It is not true. It is Jammu, Kashmir, Ladakh. We are united in history. No, not We are united. And now see GST. GST, when we said GST, because it will just have impact our fiscal autonomy. We found support from Jammu. If you were, you shouldn't have driven the Kashmiri Pandits away. No, it was Not one of you stood up to stop that. No, see. In fact, your leader, Farooq Abdullah, was enjoying this migration, who this said- driving out of who Pakistan. said- But you had a Who said- chance to resettle the Kashmiri No, Pandits. who said- Why didn't you do Not so? yet. I haven't had a The chance. government I haven't is had a saying chance. that. I haven't had a chance. Mr. Swami, when no army was Ram there, Madhav has a chance, but when not no me. army was there, who saved in 1947? Who said Hamlavar Khabardar, Hum Kashmiri hain tayyar? We were together. It was Kashyap Bandhu. It was Mr. Dar. All were together. What? All happy Nothing has together. happened. See, we admit that. See, we don't say that. We cannot condone anything. But right now, they are playing a significant role in our polity. See, the biggest school in Srinagar is run by Mr. Vijay Dar. It is DPS Srinagar. 5,000 students Muslims, 500 staff Muslims. Mr. Bashir, Professor Bashir, running a series of educational issues in Srinagar right now. We have the best eating place run by... That is not good enough. No. Should it be may part not of India. The best chemist is Mr. Bindru in Srinagar. There's a long queue waiting for outside his shop. It is not there away from it. Yes, we admit that this is something. No. Something wrong. 35A But says scholarships will be only given to- right No, see, the problem now with- they are with us. You give an impression that nobody is there. Kashmiri Pandit in Srinagar. There are problems, but the biggest educational institution is run, and you must be knowing him. It is DP Dar Memorial Trust. It is Vijay Dar. 5,000 Muslim students being imparted education by Mr. Dar. So, Dr. Swami, your argument is that at least if this Article 35A is abolished, then No, I don't need to abolish that. Remove 350, 370, 370, 35A automatically goes. That cannot be done. You are selling a dream. That is impossible. That cannot be We'll realized. see. But doesn't it And go? that per se 370 We'll is meet not again. a problem. 370 is not a problem. It was not opposed by Shama Prasad Mukherjee in parliament, on the floor of the parliament. Give me a single word from Mr. Mukherjee saying that don't have it. Only parliamentarian who opposed was Hassan Mohani. Somebody kills Shama Hassan Prasad Mohani. Mukherjee. Shama Prasad Mukherjee did not oppose it. What? 370? In the Constituent Assembly, of course he did. But then Sardar Patel said this is temporary, it will go away. So he then did not oppose it. Ma'am, go to the debates. Acha. Find a Yes, please do. Find a single opposition. It was Hasrat Mohani. Ambedkar, he said I'm not a traitor. But he is saying that oppose नहीं किया था क्योंकि temporary था, अब permanent नहीं था. You इसीलिए are fooled by that. See, And no more going to be fooled by it. See, temporary in a particular context. We were before United Nations Security Council. We were made a promise of administrator. We had made a promise of referendum and all that. So, it was 370 was in a way pledge made by the people of Jammu and Kashmir. Look here, if you come with us, this is how we are going to treat you. It was so. It ought to have been just labeled like that. Also the other thing is post we saw Balakot, Pulwama हुआ, फिर उसके बाद अब कैसे आगे कैसे पाकिस्तान पॉलिसी चलनी चाहिए? पाकिस्तान पॉलिसी? हाँ. नहीं, पाकिस्तान का तो 4 टुकड़ा होना है. पाकिस्तान का बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान एंड सिंध, इनको अलग करना है. उनके लोग सब यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो एमिग्रे गवर्नमेंट हम शुरू कर सकते हैं यहाँ. और ये इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम. होना चाहिए. किसी को
एक मजबूत पाकिस्तान, एक मजबूत हिंदुस्तान और एक मजबूत मजबूत साउथ पाकिस्तान। एशिया। देखिए वो हमारे हित में है, मजबूत पाकिस्तान हमारे हर हित में एक है। चीज हमारे हित में है। देखिए कोई भी डिस्टर्बेंस हमारे नेबरहुड में हो, हाँ। ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमारा एक इतिहास है। देखिए इस मुल्क का एक डेवलपमेंटल रूट जो है वो लिया हुआ है। हम नहीं ये जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए हाँ, किसी का टुकड़े होने। हमारी संस्कृति और में जो मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी भी वही चाहते हैं, मोदी चाहते प्राइम मिनिस्टर भी वही चाहते मोदी अकेला कुछ नहीं चाह सकते हैं। एक बड़ा- बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, आप देखिए एंड एक बड़ा मैनिफेस्टो। एक बड़ा विजिबल शिफ्ट है उनके सारे जो नैरेटिव है उसमें। हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी एनकरेजिंग बातें कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सारे मसाइल हैं ये भी वो हल करेंगे। उनमें क्षमता है, उनमें ताकत है, लोगों का एतमाद है। मोदी जी कह रहे हैं रीजनल एस्पिरेशंस को साथ देना चाहिए। भाई वो इनकी ठीक रीजनल है, एस्पिरेशन उनका ये है कि aspiration- कितने कश्मीरी लोग मेरे घर में आते हैं कि हमें एडमिशन दिला दीजिए, हमें बच्चों को वो जो कूपन मिलती है एमपीज को केंद्रीय विद्यालय, तो हम तो उसके पूरा पक्ष में हैं। हम तो सब कश्मीरियों को पूर्वज उनका सबका हिंदू है, तो इसीलिए नहीं, हमें नहीं, कोई इतराज नहीं है। देखिए तो और फारूक अब्दुल्ला मुझे कहते हैं कि मेरा पूर्वज है गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, उनसे पूछिए। देखिए मैंने कहा पब्लिकली बोलिए, कहते हैं मुल्ला मार देगा मुझे, मैं नहीं इसीलिए बोल सकता। देखिए बताइए। देखिए कश्मीरियों का प्यार भी है। अभी देखिए पहलगाम में राफ्टिंग में एक जवान ने अपनी जिंदगी दी 5 गुजराती लोगों को, अपने मेहमानों को बचाने के लिए। बहुत अच्छा। और अगर कैप्स एक दिन एक बोट कैप्साइज हुई और लड़के उतरे जहलम में, अपने जो वहां के जो भी सैनिक थे उसमें उस बोट में सवार थे उनको बचाने के लिए। हमारा भी प्यार है, लेकिन बात यह है कि आपने हमारे साथ वादे किए हैं, प्लेस किए हैं, कौन सा उनका वादा? एहतराम किए, उनका एहतराम कीजिए। आपने हमारे मैंने नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू का मेरे ऊपर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होगा? उसने सब नाजायज की थी, अवैध की थी। वो कैसे हो सकता है? वही अच्छा, वादे। ये देखिए ये एक बड़ा अजीम मुल्क है, इसका एक इतिहास है और अमन में बिलीव रखता है और पहले से ही डायलॉग कैबिनेट का परमिशन नहीं है उसके पास। आप अपने वो चले गए एडविना माउंटबेटन के कहने आप पर। अपने प्लेजेस को अपने वादों को उन पर रहिए। वायदा मैंने उनको नहीं एहतराम दिया, कीजिए। मैंने कभी वायदा नहीं दिया आपको ना। इस देश के जो लाखों के करोड़ों लोग हैं, किसी ने वायदा नहीं दिया। लेकिन जो- और खून यार कश्मीर के बचाने के लिए कितना खून बहाया है हमने। आप चुनाव कब कराएंगे? चुनाव पहले ठंडा होने दो, फिर चुनाव तो करेंगे। गर्म हो रहा है तो ठंडा। देखिए बात यह है, चुनाव टालना किसी के हित में नहीं है। अब देखिए आपने कुछ लोग कहते होंगे नहीं हम सब ठीक करेंगे, जैसे साहब कह रहे हैं। देखिए 6 साल आपने प्रेसिडेंट रूल रखा, 90 से 90 क्या हुआ? ये देखिए हमने नहीं किया। एक अकाउंटेबल हमारा प्रेसिडेंट रूल दूसरे प्रकार होगी। देखिए एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाइए, जिम्मेदार गवर्नमेंट बनाइए जो लोगों के पास लोग सामने जवाबदेह हो। ये शॉर्टकट जो है ना, ये ठीक नहीं है। आप ये जो कर रहे हैं कि हम जी ये करेंगे, ये नीजर रिएक्शन। जब एक मिनट 6 साल प्रेसिडेंट रूल रहा, क्या और हुआ? इनकी सरकार नहीं थी ना उस समय। मैं जब महबूबा के साथ गठबंधन बनी, मैं विरोध कर रहा था पहले दिन से ही। अब मैं आपको शुक्रगुजार हूं कि आपने उनको हरा दिया। मेरा शुक्र कीजिए आप। हाँ ठीक है, मैं शुक्र करता हूं, परंतु और भी शुक्र करने के लिए चाहता हूं, तो मेरी बात और भी कह दीजिए, कर दीजिए। मैं ये कहता हूं कि वो गलत हुआ था और हमने सीखा उससे। मैं कहता हूं इससे नहीं होगा किसी मीठी मीठी बात में। पहली बात मानो कि सारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर में संपूर्ण लागू होगी, तब ही हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो बात करने के लिए देखिए तैयार हैं। उसकी इजाजत आपको नहीं इतिहास देता है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अपना देता है। 370 कहीं बाहर से नहीं आया। टेम्पररी। देखिए 370 किसी बाहर वाली फोर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थोप दिया, आपने बनाया 370। हाँ हमारे टेम्पररी असेंबली थे उन्होंने बनाया। टेम्पररी। और इस 70 साल में तो कांग्रेस ही राज करते रही एक है। बैकग्राउंड में एक बैकड्रॉप है। देखिए टेम्पररी का मतलब नहीं। Alright. देखिए ये तो मैदान में और मिलेंगे। इसका चलिए, आगे और सवाल लेते हैं। टेम्पररी परमानेंट पे डिबेट अटक गई है। और सवाल? ये मैम एक सवाल पूछना चाह रही है। श्वेता बासु। Yeah, this is Joyita Basu here. I wanted to ask, there was some buzz about delimiting constituencies in Jammu and Kashmir. And MHA, first there was a buzz and then the MHA denied it. Was it basically kite flying, considering there is a governor's rule of, there is a window of opportunity of getting that exercise started? What is happening about that? I didn't know there was such an exercise, and the buzz usually comes from people like her, the journalists, that is.
but there's no question of removing the constitution of Jammu Kashmir, because Jammu Kashmir constitution's first line is that Jammu Kashmir is an integral part of India. It's one line, no ifs and buts in it. So ultimately it has to go, but first of all 370 has to go, and then only we will think of other things of integration. It was about delimitation. Delimitation. See, ma'am, delimitation cannot be done because it is frozen till 2026, and it can be done only in 2031. That is, this amendment to Constitution of Jammu and Kashmir followed. It was preceded by amendment to Constitution of India. I mean, elsewhere in the country, no delimitation. It is frozen till 2026. और अगर किसी का अधिकार है वो करने का, वो तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को है, जब इलेक्ट हो जाएगी असेंबली कर सकती है, इसको प्रिपोन कर सकती है, then it can be, the question can be debated by the assembly. No. None as on date has any power to do that. There was one misunderstanding. I didn't think she was specifically talking about delimitation. Delimitation, Farooq, yes, had Farooq Abdullah, his leader, had got it done to postpone it to. That can be undone by another constitutional amendment. No. See, that it was preceded by an amendment to why in elsewhere country I can you don't withdraw talk that about amendment. delimitation. Why in Jammu and Kashmir? I only? can nullify that See, amendment. see, ma'am, that can be done, but a duly elected legislature, they can then go for it. It's a constituent power. See, that can be exercised by that. We can very well do it. Once there is assembly in place, we can have a discussion, a good discussion. हम इस पर बहस कर सकते हैं और बहस कैसे नहीं 2016 नहीं, 2024 नहीं, 2016 नहीं, 2018 नहीं, 2020 ही. बिफोर मोर क्वेश्चन आया, एक मेरा डॉक्टर स्वामी से सवाल है. अब लुकिंग बैक आप सोचते हैं ये जो महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन था उसको आप रिग्रेट करते हैं? ये तो ही इज वन बेनिफिशियरी ऑफ इट. मैं तो विजय मना रहा हूँ कि मेरी बात मानी गई आखिर में, परंतु बाकी लोग तो रिग्रेट करना चाहिए. ये बहुत बड़ा गलती की, वो तो कभी बदल नहीं सकती. पीडीपी से वो तो कभी बदल नहीं वो तो सकती. ये तो एक दिन बनाते हैं और 10 दिन फिर मातम करते हैं उस चीज पर. अच्छा उनमें सहमत है आपसे मेरे ख्याल में. आगे और कुछ सवाल? एक क्वेश्चन है यहाँ से, दीनानाथ जी हैं इस वक्त मेरे साथ, और हसनैन मसूदी साहब से सवाल पूछना चाहते हैं. कश्मीरी पंडितों को लेकर इनका सवाल है. सर नमस्कार आप लोगों को. सर मेरा सवाल यह है कि आप लोग जम्मू कश्मीर में राजनीति करते हैं और आप एक अच्छे ओहदे से रिटायर हुए हैं. जो कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित हुए हैं, क्या आप राजनीतिक लोगों का फर्ज नहीं बनता कि आप सरकार के ऊपर पार्लियामेंट में दबाव बना करके कश्मीरी पंडितों को उनके स्थान पर बसाया जाए? देखिए, उस बारे में अभी आपने देखा होगा अभी खीरभवानी में क्या हुआ. हजारों मुसलमान और हजारों पंडित इकट्ठे और वो दे प्ले होस्ट देम. अभी देखिए अमरनाथ में क्या हो रहा है. आप जरा देखिए ना, प्रयास हो रहे हैं. और देखिए वो जो इस वक्त कश्मीरी पंडित, उनकी बात में भी कोई बात करता ही नहीं है. जो कश्मीरी पंडित इस वक्त कश्मीर में रहते हैं और बड़ा एक महत्वपूर्ण उनका योगदान है कश्मीर के जो सारा जो भी डेवलपमेंट है या जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है ना. अब मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही दूर हो गए हैं. दे आर प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन एजुकेशन, इन हेल्थ केयर सेक्टर, इन हॉस्पिटलिटी. तो उस और दूसरे हमारे जो मेरे सपोर्टर है वो तो कश्मीरी पंडित भी है ना. ऐसे नहीं जो आपको फ्रॉम डिस्टेंस जो आप दिखता है आपको, ये ठीक है कि जो हुआ एक बड़ा ही एक तकलीफ देने वाला जो एक मामला हुआ, लेकिन उसके बाद हम इकट्ठे हैं. हम अलग अलग नहीं है, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान और जम्मू के जो डोगरा हैं या बौद्ध जो हैं. हमें ये आर्टिफिशियली डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है. हम तो इतिहास में हमेशा से रहे हैं. देखिए हमारे बड़े आगरा कश्मीरी पंडित है, आपको मालूम होगा कश्मीर के बड़े बदशाह हुए हैं जैनुलाब्दीन. उनका बेटा मारा गया जम्मू में महाराजा रंजीत सिंह को, जो उनका मामा था, उसको डिफेंड करते. ये नहीं आर्टिफिशियली कोई स्टेट बन गई है. वी हैव बीन टुगेदर ऑल थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक हैं इस वक्त हमारे साथ, एडवोकेट हैं, और वो आर्टिकल 370 पर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से. सर नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक है. सर मेरा सवाल ये है कि आप दो मुद्दों पे हमेशा लड़ते आए हैं, एक 370, एक राम मंदिर. क्या भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार आ चुकी है, तो क्या 100 दिन के अंदर ये दोनों काम पूरे होंगे? यही सवाल है. सही, आपने सही प्रश्न पूछा है. सही क्वेश्चन. राम मंदिर तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को किसी ने गलत समझा दिया कानून के बारे. जो नरसिम्हा राव थे उन्होंने सारा जमीन की राष्ट्रीयकरण कर ली थी, विवादित जमीन को भी राष्ट्रीयकरण कर दी थी, और आर्टिकल 300A
जो जनता पार्टी की सरकार में हमने पेश की थी, और जो 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म के और लैंड एक्विजिशन के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 9th शेड्यूल में जोड़ी थी, उसके अनुसार अब सरकार जमीन लेने के बाद मुआवजा ही देना उनका एक ही दायित्व रहेगा, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कानून का। और जहां तक जो अविवादित जमीन है, जो 67 एकड़ जमीन है, उसमें सब लोगों को, एक राम जन्मभूमि न्याय समिति को छोड़कर सब बाकी सब लोगों ने मुआवजा ले ली है। अब ये विवादित जमीन में जब फैसला होगी सुप्रीम कोर्ट को 1 साल में, 10 साल में, 100 साल में, 200 साल में, उस समय हमारी सरकार का एक ही दायित्व है, जमीन नहीं देना है, सिर्फ मुआवजा देना है। और मुआवजा आज भी देने के लिए तैयार है यदि वो केस को वापस ले लेंगे तो। लेकिन सारा जमीन जो है, नरसिम्हा राव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना 1994 की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट में, कि यदि वहां पहले एक मंदिर था उसके बाद मस्जिद बनी तो हम ये जमीन हिंदुओं को दे देंगे। उस वचन को जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है, उसके अनुसार नरेंद्र मोदी को एक क्षण भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आज ही वो सारा जमीन राम जन्मभूमि न्याय समिति और किसी और समिति को बनाकर देकर राम मंदिर की निर्माण आज ही शुरू हो सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उस समय हम मुआवजा जो सुप्रीम कोर्ट से कहती है सही है वो दे देंगे, जो भी जीत कर आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो हम जीते थे। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन थैंक यू। अच्छा, आखिरी सवाल मनीष अवस्थी जी अवस्थी से। हैं, चीफ पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज, वो सवाल लेना चाहते हैं स्वामी जी से। स्वामी साहब, आपसे मेरा सवाल है। सवाल यह है कि सुदर्शन जी जब संघ प्रमुख थे, उनके कार्यकाल में एक ऐसी सोच बनी थी संघ की कि कश्मीर के 3 भाग कर दिए जाएं, लेह लद्दाख, कश्मीर और जम्मू। तो क्या आज भी वो सोच कायम है? नहीं, वो सोच नहीं है, क्योंकि हमारी राय है कि सारा इतिहास को देखते हुए इन तीनों का विभाजन नहीं होना चाहिए और तीनों को एक साथ हमें अपना देश का एक अटूट हिस्सा बनाना है। और यदि हम आज ये करेंगे तो दुनिया भर में ये राय बनेगी कि हम लोगों ने अब नया एक हल सोच लिया है कि वैली को हम आज़ाद कर देंगे और बाकी लद्दाख और जम्मू को रखेंगे। ये इम्प्रेशन देने नहीं चाहते। और हम, मेरी राय में उल्टा हमारी सरकार को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर जो जवाहरलाल नेहरू ने अवैध प्रस्ताव पेश की थी उसको वापस ले लेना चाहिए। और यूएन वाले लोग जो भी थोड़े बचे हैं कश्मीर में, उनको उनकी वीजा कैंसिल करके वापस भेज देना चाहिए। ये पहला कदम हमें उठाना चाहिए, परंतु विभाजन का तो सवाल ही नहीं है। देखिए, किसी भी वादे को वापस नहीं लिया जा सकता। देखिए, क्यों नहीं? आप जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा is किया था, illegal, वो it can be. जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने वादा किया था वो वापस नहीं। If it देखिए, is आप illegal. हमेशा कह रहे हैं कि सुई घड़ी की सुइयां आ गई हैं तो पलटने देंगे। आप कैसे कहते हैं हम एनल करेंगे? Illegal. ये दो अवाम के दरमियान एक प्लेज हुआ है, एक वादा हुआ है। आप नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसे ही देखिए जी, आप ऐसे ही इनको इनको ये बातें कह रहे हैं जो कि नामुमकिन है, नहीं हो सकता है। आपकी राय है? देखिए 370 एक परमानेंट फीचर है, एक मुझे बहुत लोगों ने बहुत चीजें और आपने देखिए, और आपने दिया, अगर किसी का को दिया था ये मौका ये खत्म करने का या इसमें अमेंडमेंट करने का, वो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। उन्होंने नहीं किया, आपने वो स्वीकार किया, एंड यू कैन नॉट डू इट। नो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोई यूएन जाने के लिए कोई अप्रूवल नहीं है। लास्ट आप तो गए हैं ना, आप हम वापस यूएन से। हाँ, मेरे पास आप इसमें जाते तो मैं वो डॉक्यूमेंट भी लेकर आकर आपको डिस्प्रूव कर देता, जैसे यहाँ शक्का के अगला कोर्ट केस आई थिंक ये होगा आपके फाइल में। बट थैंक यू सो मच, आप दोनों आए और हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच। और इनको गुस्सा नहीं आया उसके लिए धन्यवाद उनके लिए। बट दिस इज बीन द मोस्ट सिविलाइज्ड डिबेट। थैंक यू सो मच। आई होप ऑल मैटर्स कैन बी रिजॉल्व्ड लाइक दिस। थैंक यू। तालियां हो जाए हमारे दोनों ही मेहमानों के लिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी और हसनैन मसूदी जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे इस कार्यक्रम को आपने सफल भी बनाया।
इट इज अ प्लेजर टू हैव बोथ ऑफ यू हियर सर। और मसूदी जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो अगले सेशन के लिए हमारे साथ यहाँ पे स्टेज पर ही रहे। और इसी के साथ मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं। जोरदार तालियां हो जाए सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए।